اور اگر پورا سلام کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کرتے ہیں. یہ سلام کیا ہے؟ اور نماز کے اختتام پہ اس سلام کا فلسفہ، اس کی وجہ، اس کی بنیاد کیوں ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور دائیں طرف پہلے سلام پھیرتا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، تو اس طرف کی جنات، اس طرف کے انسان اور اس طرف کے فرشتے، ان تین مخلوقات کو سلام کی نیت کرے. جنات، انسان اور فرشتے. اور بائیں طرف سلام کرے تو اس طرف تین مخلوقات ہیں، جنات، انسان اور فرشتے، ان کی نیت کرے اور انہیں سلام بھیجے، یعنی ان کی نیت کرے. اگر تنہائی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، جماعت میں تو انسان نظر آتے ہیں دائیں بائیں، تو بھی ان تینوں کی نیت کرے، تو بھی ان تینوں کی نیت کرے، ان تینوں کی نیت کرے. کیوں؟ وہاں انسان بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن ارواح تو ہیں، نیک روحیں تو ہیں، اور نیک روحیں اور نیک ارواح سلام کرنا. ایک اور چیز، ایک جہان یہ ہے جو دیکھا ہوا ہے، میری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. ایک وہ جہان ہے جو اندیکھا جہان ہے، جس کی مخلوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو عالم ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، جس عالم کو ہم جانتے نہیں، جس عالم کے بارے میں سنا نہیں، دیکھا نہیں، سوچا نہیں، پڑھا نہیں، یا کبھی کبھی سن لیا کہ کچھ اور عالم بھی ہیں، کچھ اور جہان بھی ہیں، کوئی اور کائنات بھی ہے. ہمیں ان کو بھی سلام بھیجنا ہے، ہمیں ان پہ بھی سلام کرنا ہے. کوئی اور عالم بھی ہے اور کچھ اور عالم اور ایک جہان اور بھی ہے. کل لگے میں حضرت کا جا کے مسجد میں مصلی رکھ کے آؤں، تو بیوی نے کہا کہ مچھلی میں تیار کر رہی ہوں. کہا بس حضرت کا مصلی رکھ کے آتا ہوں نماز کے لیے، تاکہ حضرت کی جگہ رہ جائے. راستے میں مصلی رکھ کے واپس آئے تو گنگا میں کہا کہ جمعے کا دن ہے، نہا لو. کپڑے اتار کے رکھے اور نہائے. نہانے کے لیے ڈبکی لگائی، اور ڈبکی لگائی تو کسی اور جگہ جا کے کنارے پہ نکلے. وہاں جسم میں محسوس کیا کہ جس پہ کپڑے تو نہیں ہے، کسی نے کپڑے دے دیے. پھر اس میں نکل گئے، وہ مصر تھا. پیچھے سارا بھول گئے کہ میں کہاں سے آیا تھا. پھر وہاں زندگی گزرنے لگی، وہاں شادی بھی کر لی، وہاں بچے بھی ہو گئے، اور سالہ سال زندگی ایسے گزر گئے. ایک دفعہ خیال آیا تو میں تو حضرت کا مصلی بچھا کے اور حضرت کے مصلی کے ساتھ نماز کے لیے انہیں لے جانا تھا. اور میں آیا دریا کے کنارے تھا، گیا گنگا میں تھا، نکلا نیل سے تھا، دریائے نیل مصر میں. اور دریائے نیل میں پھر گئے تو گنگا سے جا کے نکلے، کپڑے پہنے، اتارے، وہ پہنے اور گھر بھاگے. تو بیوی نے کہا بس مچھلی تیار ہے، آپ کے کھائیں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ زندگی کے اتنے سال تو میں نے وہاں گزارے. ہو کیا ہو گیا، ابھی تو گئے تھے. وہ کہے میں ایسے گیا کہ دماغی طور پہ لگتا ہے کوئی تھوڑا سا خلل آ گیا ہے. ہمارے ایک صاحب تھے، جس کا دماغ خراب ہو جاتا تھا، اس کو کہتے تھے دماغی کوفت ہے. ان کا مخصوص لفظ تھا کہ اس کو دماغی کوفت ہے. تو اسے سمجھا شاید کوئی دماغی کوفت ہو گئی ہے. وہ کہے میں مصر میں تھا، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے. ایک دفعہ میں نے ان سے تذکرہ کیا تھا کہ میں تو فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، اس طرح پتہ نہیں قدرت مجھے یہاں کیسے لائی ہے، وہاں بھی میری بیوی بچے ہیں اور یہاں بھی ہے. کہا میں نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا تھوڑا سا، بس پھر بھول بھلائیاں ہو گئی. پھر ایک دفعہ یاد آیا کہ میں حضرت کا مصلی بچھا کے مسجد میں گیا تھا، میں تو ان کو جمعے کے لیے لے جانا تھا اپنے مرشد کو. وہ کہے ابھی جا رہے ہیں آپ، اور آپ ابھی تو گئے ہیں اور بھاگے تو اور مرشد کو جا کے مسجد میں لے آئے، نماز پڑھائی، پر دماغ گھوم رہا تھا کہ میں کہاں پہنچا تھا اور کیا تھا. وہ خواب تھا، وہ خیال تھا، وہ حقیقت تھی، وہ کیا تھا. کچھ ماہ کے بعد بیوی بچے لے کے آ گئی ڈھونڈتی پیچھے سے کہ جی آپ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک دم غائب ہو گئے، یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا وفا ہے، یہ کیا ہے. کچھ جہان اور بھی ہے جو میری آپ کی سمجھ میں نہیں ہے. کچھ جہان اور بھی ہیں جو میری آپ کے سمجھ میں نہیں ہے. بند ٹوٹنے والا تھا، سخت سیلاب تھا کہ بند ٹوٹ جائے گا.
और अगर बंद टूटा तो सारा सारा शहर खत्म। दरवेश की खिदमत में हाजिर हुए, हजरत को दुआ फरमाए। क्या हुआ? फरमाए एक जवान दो, उसको कश्ती में बिठा दो, मैं उसको शाह जिन्नात के पास भेजूंगा और उनसे अर्ज करूंगा दुआ फरमाए ये बंद ना टूटे। उन्होंने एक जवान दिया, उसको कश्ती में बिठाया, थोड़ी देर में देखा तो गायब, कश्ती भी गायब, वो भी गायब। कुछ दिनों के बाद वो जवान घर में मिला, लेकिन दिमाग उड़ा हुआ, लहजा उड़ा हुआ, सोचे पथराई हुई, आंखें पथराई हुई, और वह ऐसे परेशान देखता था। कुछ दिनों के बाद तो आलम होश में आया। पूछा क्या हुआ? कहा आपने मुझे कश्ती में छोड़ा तो एकदम मैंने देखा कि पानी के नीचे, और पानी के नीचे देखा तो एक शहर है। इसी तरह शहर आबाद है, पूरी दुनिया है। मुझे ले गए कुछ लोग लेके, तख्त लगा हुआ है और वहां बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, और कहा हजरत ये फलां दरवेश का भेजा हुआ कासिद है और वो कहते हैं कि आप दुआ फरमाएं बंद ना टूटे, और अगर बंद टूट गया तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। कहा हमने दुआ कर दी है, बंद नहीं टूटेगा, पर ये बंदा आप हमें दे दे। कहा बस मैं फिर उनके यहां मेहमान रहा कुछ दिन के लिए, बड़े खाने, बहुत पीना, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार। एक दुनिया थी, एक शहर था, एक जहान था और एक कायनात थी। और फिर बस उसके बाद मैंने कहा मुझे उदासी हो रही, मुझे घर पहुंचाएं, तो उन्होंने मुझे घर पहुंचा दिया और मैं घर आ गया। आलम मुशाहिदे के बाद ज्यादा अरसा वो बंदा ना जी सका, वो बंदा ज्यादा अरसा ना जी सका। किताबों में लिखा है जिन्नात पानी के नीचे भी रहते हैं, जमीन के नीचे भी रहते हैं, फजाओं में भी रहते हैं, हवाओं में भी रहते हैं, बिलों में भी रहते हैं। एक जहान और भी है जो मेरी आपकी नजरों से, मेरी आपके गुमान से, मेरे आपके ख्याल से नहीं है। मैं गया पागल खाने, ये अभी सामने हमारी इस तरफ पागल खाना है, जेल रोड पे, 10 मिनट के बाद पागल खाना आ जाता है यहां से। मैं पागल खाने गया, कई साल पुरानी बात है। वहां के कुछ मोहब्बत करने वाले तस्बीह खाने के थे, उन्होंने मुझे फिराया पागल खाना, बहुत बड़ा पागल खाना है। यहां का पागल खाने में भी गया, फिर एक मानसिरा से आगे है, जबूड़ी से आगे है डाडर, वहां के पागल खाने में भी 2 दफा गया। तो यहां के लाहौर के पागल खाने में गया तो मैंने कहा कोई अनोखी बात, कोई चीज। उसने कहा एक पागल है, इस तरह की बातें करता है कि मैं 300 साल पहले यहां यूं था, यहां यूं था, यहां यूं था, और इस तरह जहान था, इस तरह जहान था। तो मैंने पूछा आपका क्या ख्याल है? कि वो पागल आदमी, पागल बातें करते हैं। मैं कहा अगर वो हकीकत हो तो? वो कहते मैं रावी में नहाने गया था। रावी उस वक्त होता था, रावी होता था, मीलों में फैला हुआ उसका पेटा था, रावी था। मैं रावी में नहाने गया था, बस उसके बाद फिर किसी में शहर में चला गया, वहां रहा, जिंदगी गुजरती गई, और फिर वहां से मैं बूढ़ा हो गया। फिर एकदम ख्याल आया, यहां आया तो निजाम बदला हुआ, लाहौर का नक्शा बदला हुआ, लाहौर का अंदाज बदला हुआ। पता चला कि 300 साल पहले मैं गया था। अब वो ऐसी बातें करे, उन्होंने पकड़ के, वारिस था कोई नहीं, अम्मा अब्बा बहन भाई बीवी सब मिटा गए, कायनात कहानी खत्म हो गई, उन्होंने पकड़ के पागल खाने दे दिया। और वो पागल जैसी बातें करता है, जबकि वो पागल नहीं है। वो कहते पागल है, ये कैसी बातें करते हैं? एक आलम ये है, एक आलम वो है, एक आलम वो है जिसकी रफ्तार बड़ी तेज है। मैं आज पूरी दुनिया की कालें लेता हूं, दुनिया के बाज आखिरी किनारे में मेरी बात हो रही होती है। ये नहीं होता कि मैं बात करता हूं तो वहां तक बात पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है, फिर वो बात करते हैं, मुझ तक पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है। नहीं, मेरी सांसें उनकी सांसें, मेरी बातें उनकी बातें ऐसे हो रही जैसे मेरे आप आमने सामने बैठे हैं। ये नूर का जहान है, नूरी साल है, नूरी रफ्तार है, 1,86,000 मील फी सेकंड, ये अंदाजे हैं, जबकि कायनात इससे आगे है और इससे कहीं आगे है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की उन बातों पे लोगों ने उस वक्त फतवे लगाए थे। शेख मोहिउद्दीन आज से तकरीबन 700 साल पहले कहने लगे, मैं काबा का तवाफ कर रहा था तो मैंने देखा आदम है। मैंने कहा आप आदम हैं? कहे कौन से आदम? मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम। कहे किस जहान के आदम? या कई आदम हैं, कई जहान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह आलम नहीं, आलमीन का रब है। ये जो सलाम है, ये जो सलाम है,
ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، ایک صاحب نے عجیب واقعہ سنایا. میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، زندگی ساری گزری ہے، کہانیاں بنانے والے بھی آتے ہیں، لیکن حقیقت بھی آتی ہے، حقیقت بہت تھوڑی ہوتی ہے. کہانی کی بات سنا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جی میں ایک بشارت لایا ہوں آپ کے لیے. ایسے میں نے سورۃ یاسین پڑھی، ایسی حضور آئے، انہوں نے کہا کہ اس کو جا کے میرا سلام کہیں اور آپ کے لیے بہت بڑی بشارت. میں کہ جی اس قابل ہو جاؤں. وہ پھر اصرار کرے کہ واہ واہ کہے. میں کہ بس دعا کریں. چلا گیا. دوسرے دن نہیں، کئی دنوں کے بعد پھر آیا. ایسے ایسے میں نے عمال کیے، خواب آیا آپ کے لیے. میں کہ ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد اچانک آئے کہ فلاں بندہ جو ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے، اتنے پیسے دے دے، میں آپ کو 2 دن کے بعد لوٹا دوں گا. اور بس میں نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہے. میں وہی ہوں جس نے خواب سنایا تھا. میں کہا بالکل ٹھیک ہے، جب خواب مجھے آ جائے گا تو پھر ہم آپس میں لین دین کر لیں گے. ابھی تو آپ کو آیا نا، مجھے جب آئے گا تو معاملہ لین دین کر لیں گے. ایک دفعہ اس نے بندہ بھیجا، بھاگتا بھاگتا بندہ ہانپتا کانپتا آیا، بھاگتا. ایسے ایسے وہ کہہ رہے ہیں جی ایسی مسئلہ ہے، پیسے دے دیں. میں کہا نہیں. اس کے بعد پھر وہ آ کے باقاعدہ مجھے بے عزت کر کے گیا کہ آپ نے میرے خوابوں کی لاج نہیں رکھی، سورۃ یاسین کی لاج نہیں رکھی، تم تو کافر مشرک منافق آدمی ہے. تو وہ یہ ہے کیونکہ میں نے پیسے نہیں دیے، ورنہ میں مومن تھا. اچھا میں بات جو کر رہا تھا، ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اللہ سے مانگتا رہا کہ اللہ مجھے عالم، میرے اوپر عالم کھول دے، اپنا نظام کھول دے کہ یہ عالم ہے کیا، اور اس عالم میں تو نے جو عالم بنائے ہیں کیا ہے. کہنے لگے کہ دعائیں مانگتا رہا، اس کے لیے اعمال بھی کرتا رہا، اس کے لیے اذکار بھی کرتا رہا، اس کے لیے چلے بھی کرتا رہا، بہت کچھ کرتا رہا کہ اللہ عالم کشف مجھ پہ کھول دے، اپنی کائنات کے راز مجھ پہ کھول دے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. جس پہ چاہے تو کھول دے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. تو چاہے جس پہ اپنی دنیا، اپنی کائنات کھول دے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم غشا. تو چاہے جس سے پردے ہٹا دے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اے اللہ تو جس سے چاہے پردے ہٹا دے. کہنے لگا میں کرتا رہا. ایک دفعہ کہا میں تنہائی میں نفل پڑھ رہا تھا، میں نے جو ایسے سلام پھیرا نا، السلام علیکم ورحمت اللہ، میں نے دیکھا کائنات ہے اس طرف پوری کی پوری. کوئی گھر سونے کے، کوئی گھر چاندی کے، کوئی ہیرے، کوئی جواہرات کے، کوئی اینٹوں کے، کوئی کوئلے کے، کوئی چیزوں کے بنے ہوئے ہیں. وہاں کائنات رہ رہی ہے اور دنیا رہ رہی ہے. اس کے بعد ایک نقشہ ہٹا، پھر میں نے سمندر دیکھا، سمندر کے نیچے کائنات ہے، پھر اس کے نیچے اور دنیا ہے، پھر اس کے نیچے اور دنیا ہے. کہا ایسی دنیا عالم میں گم ہو گیا. اور وہ ایک سلام جو ہے، ایسے دماغ وہیں آنکھیں. اور کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ ابھی میں نے تو دوسرا سلام بھی نہیں کہا. دوسری طرف بائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ، تو اس طرف ایک اور کائنات کا جہان کھلا کہ پہاڑوں کے نیچے دنیا، درختوں کے اندر دنیا، پتے پتے پہ کائنات، پتے پتے پہ نظام، ذرے ذرے میں انوکھی دنیا، انوکھی کائنات. کہا دماغ ایسے ہوا 8 دن تک نہ سو سکا، نہ کھا سکا، نہ پی سکا، بس زبردستی کھلاتے پلاتے تھے. عالم حیرت یا دلیل المتحیرین، متحیر ہو گیا. حیرت، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، نظام پھٹا کا پھٹا، آنکھیں ایسی، کائنات کا کوئی خبر نہیں. تو 8 دن کے بعد آواز آئی، ہم سے اور عالم مانگے گا؟ صرف ہم نے اپنا تھوڑا سا جلوہ دکھایا تھا. موسیٰ جیسا نبی بھی بے ہوش ہو گیا تھا. طور پہ موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی، 28 پاروں میں تو ان کا نام آیا ہے، 2 پاروں میں کل 30 پارے ہیں، ان کے حوالے آئے ہیں. موسیٰ وہ نبی ہیں. میں گیا وہاں اس جگہ جہاں طور سینا. موسیٰ ہماری تجلیاں برداشت نہ کر سکا، تو ہم سے عالم کشف مانگتا ہے، تو سارے نظام کا عالم مانگتا ہے. بس تجھے ہم اتنا بتا دیں، جب تو سلام پھیرتا ہے نماز میں، تو نماز کے دائیں طرف کائنات ساری کی ساری تیرا سلام جاتا ہے اور تیرے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. اور جب بائیں طرف سلام پھیرتا ہے، اس طرف ساری کائنات کھربوں سال پرانی، کھربوں لوگ ہیں، اس طرف جب نظام جاتا ہے تو دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. تیرے اس سلام سے جو تجھ پہ سلامتی لوٹ کے آتی ہے، تیرے اس سلام سے جو تجھ پہ سلامتی لوٹ کے آتی ہے، تو ساری کائنات کی عبادتیں کر لے، وہ نہیں ملے گا جو اس سلام پہ ملے گا.
اس سلام پہ ملے گا۔ نماز کے دوران، نماز کے دوران، اس لیے فرمایا نماز کے دوران سلام پھیرتے ہوئے ہماری نظر اس کندھے کی نوک پہ ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، ہماری کندھے کی نوک پہ نظر ہو، اور ہماری نیت ہو، کیونکہ ہمارے سامنے یہ تین عالم ہے، عالم ارواح ہے، فرشتوں کا عالم ہے، جنات کا عالم ہے۔ ارواح سے مراد یہ انسان موجود ہیں یا غائبین ہیں یا منتظرین ہیں، جو روحیں موجود ہیں اور آنے والی ہیں، وہ منتظر روحیں ہیں۔ نماز کے ایک ایک عمل میں ایک کائنات کے راز چھپے ہوئے ہیں، اور نماز کے ایک ایک عمل میں کائنات کی انوکھی دنیا چھپی ہوئی ہے، اللہ جس میں چاہے کھول دے۔ ایک درویش تھے، سورۃ فاتحہ میں بہت دیر لگا دیا، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، چپ خاموش، پھر پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر چپ۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ میں دیر، پوچھا حضرت دیر کیوں لگی؟ فرمایا ہر کلام کے بعد جب تک مجھے جواب نہیں ملتا تو میں آگے نہیں پڑھتا، اور کہا کہ آج جواب دیر سے ملا، لگتا ہے مقتدیوں میں کوئی کبائر میں مبتلا ہے، مقتدیوں میں کوئی ایسا ہے جو بہت بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اس لیے مجھے جواب دیر سے ملا، ورنہ مجھے الحمدللہ کہتا ہوں جواب ملتا ہے، آگے پڑھتا ہوں جواب ملتا ہے، میری کوئی نماز ایسی نہیں جس میں مجھے جواب نہ ملا ہو۔ کہا میں روزہ اطہر پہ حاضر ہوا اور میں نے سلام پیش کیا، سلام پیش کیا، دیر ہو گئی، پھر سلام پیش کیا، دیر ہو گئی، پھر سلام پیش کیا، میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، میں نے کہا آپ چلے، آپ کا سلام ہو گیا، میں آتا ہوں، ان کے جاتے ہی جواب ملا، وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے تیرا سلام قبول ہے۔ کہا ان میں کوئی ایسا بندہ تھا جو ایسے کبائر میں مبتلا تھا، اس کی وجہ سے میرا سلام رکا ہوا تھا۔ کوئی جہان اور بھی ہے، کوئی دنیا اور بھی ہے، کوئی کائنات کا نظام اور بھی ہے۔ ایک میری آنکھوں کے سامنے مشاہدے کا جہان ہے، ایک میری آنکھوں کے سامنے انسانوں کا جہان ہے یا جنات اور فرشتوں کی سنی سچی داستانیں ہیں، ایک وہ نظام ہے جو مشاہدے میں بھی نہیں، مطالعے میں بھی نہیں، کہیں نہیں ہے، پر ایک نظام ہے، ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے جس کو میں نہیں جانتا، جس کو میں نہیں جانتا، وہ ایک دنیا ہے، اور وہ حقیقی دنیا ہے، اور وہ سچی دنیا ہے، اور وہ حقائق کی دنیا ہے۔ نماز کی جو عبادت ہے اور نماز میں عبادات کا جو راز اور کمال ہے، اس کی حقیقتوں تک میں آپ نہیں پہنچ پا سکتے، اس لیے فرمایا کلمے کے بعد سب سے پہلے جو چیز زندگی میں وہ نماز ہے، اور جب تک غرہ نہیں، اور جب تک موت کی سکرات نہیں، اور جب تک عالم ہوش ہے، اس وقت تک نماز ہے۔ یہ سلام، اس میں بڑی طاقت ہے۔ ایک چودھری تھا، تو وہ ایک پیر صاحب تھا، فقیر درویش آدمی تھے، مسجد کے خادم بھی تھے، ان کا مخالف تھا، سارا جہان جا کے چودھری کو سلام کرتا تھا، یہ سلام کرنے نہیں جاتا تھا، گزرتے تھے تو سلام کر دیتا تھا، کہتا میرے ڈیرے پہ آ کے سلام کیا کر روز مجھے۔ اس نے کہا یہ 5 وقت نماز مسجد کی خدمت ہوتی ہے، آپ مجھے رخصت دے دیں، میں نہ آیا کروں۔ اس نے کہا تو میری رعایا ہے، تو یہ ضروری ہے تو سلام کر۔ یہ نہیں جا سکتا تھا، چودھری ناراض تھا، علاقے کا بڑا، گاؤں کا بڑا۔ ایک بچی تھی، اس پہ جنات آ گئے بہت زیادہ، جگہ جگہ لے کے پھرے، جنات ایسے سخت تھے، جو بندہ بھی جنات کو نکالنے کے لیے آتا جن پہلے اس کی ٹھکائی کرتا تھا اور مار کے زخمی کر دیتا تھا۔ چودھری کہنے لگا یہ جو مسجد کا مولوی صاحب ہے نا، یہ بڑا طاقتور ہے، جن نکالتا ہے، یہ مانے گا نہیں، عاجزی بہت ہے اس میں، انکساری بہت ہے، اس کے پاس لے جاؤ، لے جاؤ، اور تم باہر نکل جانا، ٹھیک، یہ جن نکال دے گا۔ اس نے کہا بھئی اس کی میں طبیعت ٹھیک کراؤں۔ اب ان کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا جی 4-5 سال کی بچی ہے، اس میں جنات ہیں، اور جب یہ جنات آتے ہیں تو یہ بچی مقابلہ جب کرتی ہے کئی بندے زخمی کر دیتی ہے، طاقت اتنی ہوتی ہے، وہ تو جنات تھے اندر، تو آپ اس کا علاج۔ اس نے کہا میں تو یہ کام نہیں کرتا، میں تو نماز پڑھاتا ہوں، سادہ سی تسبیح پڑھتا ہوں، چٹائیاں سیدھی کرتا ہوں، پانی بھرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہ، دیکھو نا بات آ گئی کہ انہوں نے کہا، چودھری کہا تھا انکار کرے گا، بات آ گئی نا۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کیا کیا، بچی کو اندر بند کر کے کنڈی لگا دی،
कुंडी लगाते ही बच्ची कहने लगी हाँ आ गई जिन। उसने हाथ बांधे, सलाम करता था और मैं कहा मैं फकीर हूं, मैं तेरा क्या मुकाबला करूंगा, तू जिन है, अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, मेरे सलाम और आजिज़ी कबूल कर ले। बार बार सलाम करे और आजिज़ी करे, तेरी मेहरबानी। और कहा अगर तू चला जाएगा मेरी वाह वाह हो जाएगी और मुझे फिर कोई तबर्रुक चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी, गरीब हूं, 4 दिन मेरे सवर जाएंगे, ये जारियां सलाम मिन्नतें ये कीना। तो जिन कहने लगा मेरे पास जितने भी आए थे मुकाबले वाले आए थे, आजिज़ी वाला पहला आया है जितने भी आए थे ना वो सारे मुकाबले वाले आए थे। वो मुकाबले जब आते थे तो मुझसे बड़े ताकतवर थे नहीं, मैं उन्हीं को पिछाड़ देता था। तू आजिज़ी वाला आया है, सलाम आजिज़ियां हाथ बांधता है, पांव पड़ता है, ठीक है मैं जा रहा हूं और आज के बाद नहीं आऊंगा। वो जिन चला गया, बच्ची ठीक ठाक हो गई, उन्हें कहा ठीक हो गई। उसके बाद उसकी जो वाह वाह हुई, उन्होंने कहा कमाल कर दिया। चौधरी परेशान के हुआ क्या है काम तो सारा उल्टा हो गया, मैंने तो इसकी तबीयत ठीक करानी थी, जिन ने इसको जख्मी करना तो हड्डी इधर उधर की तोड़ तोड़ देता, ये क्या हो गया। तो उसके पास आया, अच्छा उसे भी समझ आ गई ये सारी चौधरी की कहानी है, पता चल गया उसी ने कहा था। उसने कहा चौधरी साहब आपके पास चौधराहट है, आपके पास बड़ापन है, मेरे पास छोटापन है, अल्लाह छोटे पने को कबूल करता है। मैंने उनके सामने मिन्नत जारियां की, सलाम किए, हाथ बांधे, उसने मेरी मिन्नत जारी को कबूल कर लिया और मिन्नत जारी को कबूल करके वो चला गया। बस मेरा अल्लाह ने मेरा भरम रख लिया, मेरी लाज रख ली। कुछ दुनिया और है, कुछ निजाम और है। एक मेरी आंखों के सामने एक दुनिया है, आपकी मेरी आंखों के सामने। इसी बात पे एक हदीस सुनाता हूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने मुझे इल्म के 2 बर्तन अता किए हैं, एक वो है जो मैंने बयान कर दिया, सबसे ज्यादा रिवायात हजरत अबू हुरैरा से साबित है, एक वो जो मैंने बयान कर दिया, एक वो है अगर मैं बयान कर दूं तो 2 लफ्ज हैं, या मेरी जुबान निकाल दे गुद्दी से या तलवार लेके मुझ पे टूट पड़े, ऐसे कायनात के राज हैं मेरे पास पर मैं जुबान पे नहीं ला सकता। एक छोटा सा राज जुबान पे आया था, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी मोहब्बत का राज लोगों को बता दिया, अब बोल या मोहब्बत से निकालता हूं या फिर दुनिया में उसकी सजा दिलाऊंगा। मौला दुनिया में सजा दिला दे पर अपनी मोहब्बत और अपने इश्क और मस्ती से मुझे दूर ना करना। और दुनिया में वो सजा मिली कि लोग मंसूर हल्लाज की सजा को जानते हैं। पत्थर मारे गए, आग लगाई गई, जलाया गया, राख बनाई गई, फांसी दी गई, टुकड़े किया गया, क्या किया गया, दुनिया की सारी सजाएं मिली हैं। कहा मुझे अपनी मोहब्बत से नहीं, तूने मेरे एक राज को जहर किया था, वो तेरा मेरा दरमियान था। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जिसको कोई राज मिले और आपको अपने पास राज रखे। रूह राज का नाम है, रूहानियत राजों का नाम है। उठा देना, रूह किसका नाम है? राज का नाम है। रूहानियत राजों का नाम है, राजों का नाम है। मेरी हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे कितने राज दिए हैं, फरमाया अपने तक रखना, बस अब ये सीना कब्र में चला जाएगा। कितनी बातें फरमाई, कितनी चीजें फरमाई, बस हुक्म खत्म। कुछ और दुनिया भी है, कुछ और जहान भी है जो मेरी आपकी आंखों के सामने नहीं है। मेरी वो आंखें हैं जो चेहरे की आंखें हैं, इसलिए कहा अल्लाह से दिल की आंखें मांगा करो, अल्लाह दिल की आंखें अता फरमा। एक चेहरे की आंखें तो सबकी हैं, कुछ दिल की आंखें भी मुझे अता कर दे। मौला मुझे दिल की आंखें दे दे। जिसको दिल की आंखें मिलती हैं उसके सामने कायनात के जहान और है, निजाम और है, दुनिया और है, अर्श और फर्श है पर और है। अल्लाह पाक अपनी कुदरत के जलवे दिखाता है, कायनात के मजाहिर और मनाजिर दिखाता है। अल्लाह दिखाता है कि मेरे पास एक और आलम भी है। तेरा इल्म महदूद, तेरा सीना महदूद, तेरी सोचें महदूद, तेरी फिक्रें महदूद, तेरे जज्बे महदूद हैं। एक और आलम भी है, एक और जहान भी है। अभी तो राह गुजर में है, अभी तो राह गुजर में है, दुनिया तो कहीं और भी है। कैदे मकाम से गुजर, मिस्र और हिजाज से गुजर, पारस और शाम से गुजर, तो राह गुजर में, रास्तों में है। कब्र का निजाम हम तो समझते हैं गढ़ा है, हम तो इसको सिर्फ गढ़ा समझते हैं। जिसके सामने उसकी दुनिया खुली, जिसके सामने दिलों की दुनिया खुली। कहा मैं जा रहा था कश्मीरी बाजार लाहौर में, वहां दरवेश ने क्या किया, अपनी पगड़ी उठा के मेरे सर पे रखी, तो मैंने देखा कि इंसान जितने भी हैं सारे के सारे, उसमें चंद इंसान हैं, बाकी किसी कुत्ते की शक्ल, कोई खिंजीर है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई क्या है। हाँ एकदम परेशान हुआ। उन्होंने अपनी पगड़ी उठा के वापस अपने सर पे रखी तो मेरे सामने फिर वही इंसान ही इंसान थे, जबकि उस वक्त दुनिया मेरी और थी।
शेख इब्ने दकीक, शेख तकीउद्दीन इब्ने दकीक अल-ईद, शेख तकीउद्दीन इब्ने दकीक अल-ईद रहमतुल्लाह अलैह सारी उम्र मुंह पे कपड़ा लपेट कर रखा, सारी उम्र मुंह पे कपड़ा लपेट कर रखा, किसी को चेहरा नहीं दिखाते थे। आखिरी ओर में जाते हो कहने लगे, लोगों एक राज बताता जाऊं, मैंने एक दफा तजर्बाती तौर पे एक हदीस को देखा, आजमा के देखूं, फरमाया जो इमाम से पहले उठेगा या पहले जाएगा, अल्लाह उसका क़यामत के दिन चेहरा गधे का बना देगा। इमाम की इत्तिबा करना इतना जरूरी है। और फरमाया नमाज का इमाम इमाम है, और जिंदगी का इमाम मुर्शिद होता है। नबी के बाद असल नबी है, फिर नबी के बाद मुर्शिद होता है, क्योंकि नबूवत का सिलसिला खत्म नबूवत के सदके। तो कहा एक दफा मैंने आजमाया, मैंने कहा पहले करके देखूं, तो मेरा चेहरा बदल गया है और मैंने सारी उम्र अपना चेहरा छुपाए रखा है। अब मैं अपना, चूंकि मौत है और मौत में हर बंदा मेरा चेहरा देखेगा, और ये राज किसी को पता नहीं चलेगा कि ये चेहरा हुआ क्यों था, ये चेहरा हुआ क्यों था। लोगों, ये चेहरा इसलिए हुआ था कि मैंने इमाम की पहल की थी और आजमाने की खातिर की थी। अल्लाह ने कहा तू मेरा दोस्त था और तू भी आजमाता है मेरे हबीब की बातों को, ला मैं दुनिया में तुझे करके दिखा देता हूं। क्योंकि उसका निजाम अपनों के साथ और है, गैरों के साथ और है। ये लफ्ज कभी ज्यादा गौर से समझना। उसका निजाम अपनों के साथ और है। गली में बच्चे खेल रहे हो ना, 4-5, अपना बच्चा खेल रहा हो, उसको पकड़ते हैं, ये खेलने की जगह है, ये खड़े होने की जगह है, बाकियों पे परवाह ही नहीं करते। उसका निजाम अपनों के साथ और है और गैरों के साथ और है। हाँ, बड़ी बारीक बात है, बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। मैं तूने इमाम की इब्तिदा नहीं की थी, तूने इमाम को छोड़ा था। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, उनकी खानकाह में मैं गया हूं, वहां बगदाद में। शेख के मजार के बाद फिर उनकी खानकाह, उनके तस्बीह खाने गया जहां उनकी खानकाह थी। तो उनकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, तो कहने लगा हजरत मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मेरी शक्ल कुत्ते की तरह, और मैं भौंकता हूं बकायदा, और लोग मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बांधने की, और मैं भागता हूं गलियों में, ख्वाब मुसलसल देख रहा हूं। हजरत ने पूछा किसी से बैत है तुम? हजरत मैं आपसे बैत हूं। तो फरमाया लगता यह है तो मुर्शिद की सही इक्तदा नहीं कर रहा, उन्हें मुर्शिद नहीं माना, और मुर्शिद की नाफरमानी कर रहा है। खतरा है तुझे दुनिया में तेरी शक्ल कुत्ते की तरह ना हो जाए। और फिर यही वाकया सुनाया उनको कि हदीस में आता है, मफहूम है, जो इमाम की इक्तदा नहीं करे, उससे पहल या बाद में करे, उससे पहल करे, मैं उसकी शक्ल कयामत के दिन मौत के बाद गधे की तरह हो जाएगी और जानवरों की तरह बदल जाएगी। मफहूम है? मैं लगता यह है तो अपने मुर्शिद को सही मुर्शिद मान के नहीं चल रहा। कुछ दुनिया और भी है, कुछ निजाम और भी है जो जाहिर में समझ नहीं आता। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कभी रिश्तेदार को बैत नहीं करते थे, मोहल्लेदार को बैत नहीं करते थे, शहरदार को बैत नहीं करते थे, और हम 10 क्लास फेलो बैत नहीं करते थे। एक दफा हजरत का जब विसाल हुआ, बगदाद में जनाजा था, एक बंदा सबसे ज्यादा रो रहा था और धाड़े मार रहा था। लोगों ने कहा कि हजरत की महफिल में आज तक इसको देखा तो नहीं है, कौन है ये बंदा? तो उससे पूछा, कहा मैं हजरत का पड़ोसी हूं, सारी उम्र मैं लोगों के तबसरे हजरत के बारे में सुनता रहा, वसवसे सुनता रहा, बातें सुनता रहा, मैंने कोई हजरत को अहमियत नहीं दी। मैंने कहा ऐसी पीर है, दुनियादार पीर है। कहा रात को मैंने ख्वाब में देखा, कहने वाले ने कहा कि लोगों दुनिया यतीम हो गई, हमारा एक दोस्त इस दुनिया से चला गया। मैंने पूछा कौन? कहा तेरा पड़ोसी अब्दुल कादिर। कहा कि मैं इनके विसाल पे नहीं रो रहा, सब ने जाना है, अपनी महरूमी पे रो रहा हूं। मैं इनके विसाल पे नहीं रो रहा, सब ने जाना है, अपनी महरूमी पे रो रहा हूं। मैं करीब रह के, शक और वसवसे की दुनिया में मुब्तला रह के, तबसरों और लोगों की सुनी सुनाई दुनिया में मुब्तला रह के इनसे दूर रहा। आज वो हस्ती चली गई और मैं महरूम रहा, जिस हस्ती के बारे में अर्शों से सदा आ रही है कि दुनिया यतीम हो गई है। कुछ जहान और भी है, कुछ दुनिया और भी है जो मेरी आपकी अकल और समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरे हजरत के सामने बैठा बातें सुन रहा था, ऐसे बातें सुन रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज आई ना, दरवाजा खुलने में चूंचा होती है, दरवाजा खुलने, मैंने यूं देखा और खींच के मारा थप्पड़। और मैं बैठा, मेरे सामने पीछे मुड़ के देखता है, मालूम हुआ तेरे अंदर अदब और तलब नहीं है।
तेरे अंदर अदब और तलब नहीं है। तेरा क्या ताल्लुक, कोई आए ना जाए, गुम कर गुमाया करू रहे। उनके गुमान भी गुम हो जाते हैं, उनके ख्याल भी गुम हो जाते हैं, उनके जज्बे भी गुम हो जाते हैं। ये जो सलाम फेरते हैं, इस सलाम के साथ कई राज जुड़े हुए हैं, कई निजाम जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे लिए आफियत का निजाम है, हमारे लिए बरकत का निजाम है, हमारे लिए खैरों का निजाम है, और वो पलट के कायनात का निजाम वापस हमारी तरफ आता है। उनको सलाम करते हैं और वो सलाम का जवाब देते हैं। तो फिर ये वो यहां तक कहा, एक दरवेश थे, उनको देखते कहा जाओ तेरा काम बन गया, बस जाओ लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाओ। उसने कहा हजरत मैंने विलायत की मंजिलें, रूह की मंजिलें, लताइफ, जिक्र कल्बी, जिक्र जहरी, लतीफा नफ्स, लतीफा कल्बी, सुल्तानुल अस्कार, चारी सिर, ये उन्हें बस तेरा काम बन गया, जाओ। फिर फरमाया तुझे यकीन नहीं आ रहा, ले सुन, तूने सलाम फेरा था, उस सलाम में खिजर थे, उस सफ में खिजर थे। तूने सलाम फेरा था, उस सफ में खिजर थे। खिजर ने तुझे कह दिया, तूने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, खिजर ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बस उनकी सलाम पे तुझे सलामतियां और जो रहमत मिली है, तू नबी तो नहीं बन सकता पर वली बन गया, जा तेरा काम हो गया है, सलाम में हो गया। नमाज कोई ऐसी हल्की चीज है, फर्ज नमाज, सुन्नत नमाज, नफिल नमाज नमाज है, नमाज नमाज है, और नमाज कायनात है। जा और कहा जा, तेरी जुबान सैफ बेनियाम है, ख्याल करना, किसी को बद्दुआ ना देना, जो निकलेगा हो जाएगा। ऐसी तलवार है जिसका नियाम नहीं है। कुछ दुनिया में और भी जहान है, एक वो जहान जो मैं जानता हूं, एक वो जहान मैं सुनता हूं, एक वो जहान मैं पढ़ता हूं, एक वो दुनिया जो मेरे मुताले मुशाहिदे में मैंने सुनी हुई है। कुछ अल्लाह जिस पे खुल दे कायनात का निजाम, जिस पे खुल जाए, जिस पे खुल जाए, जिस पे दुनिया कायनात खुल जाए। हाँ, कहा दुनिया में ऐसे रहे तुझे कोई पहचान ना सके, कोई दुकानदार कहे, कोई ईमानदार कहे, कोई अल्लाह वाला कहे, कोई धोखेबाज कहे, बस दुनिया में ऐसे रहे तुझे कोई पहचान ही ना सके। कुन फिर दुनिया गरीबन, परदेसी मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजार और चला जाओ। इसलिए बड़ों की बात मैंने पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इन 4 तबकात को बैत नहीं करते थे। फरमाते थे तुम्हें सारी जिंदगी कोई ना कोई वसवसा पे खा जाएगा, तुम्हें सारी जिंदगी कोई शक खा जाएगा, तुम सारी जिंदगी तहकीक में रहोगे, कहां से आ रहा है, कैसे है, अल्लाह वाला है भी सही, अंदर कहानी क्या है, बाहर कहानी क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और फरमाया जो इन 4 तबकात के अलावा है वो अंधा होता है, वो दीवाना होता है, वो गूंगा और बहरा होता है। इसलिए किसी ने पूछा किसी अल्लाह वाले से निस्बत से पहले क्या करें और बात क्या करें, सुनो जरा गौर से। कहा निस्बत किसी फकीर की है, उससे पहले आंखें भी खुली रख और कान भी खुले रख, खुली आंखों से देख ले ऐब, गुनाह, गलतियां, बातें, कहानियां, और कान भी खुले रख, जो कहानियां सुननी है सुन सुन सुन, सब कुछ सुनता जा। और जब किसी फकीर से निस्बत हो जाए फिर आंखें भी बंद कर ले, कान भी बंद कर ले। फिर आंखों से कुछ देख तो कहा मेरी आंखों का धोखा है, कानों से कुछ सुन तो कहा मेरे कानों का धोखा है। हजरत ने दिए पैसे, बात लंबी हो रही है, घड़ी कहां जा रही है। हजरत ने दिए पैसे, और उस दौर में बड़े से बड़ा पैसा जो है, बड़े से बड़ा पैसा, कोई आखिरी बंदा होता था तो रुपया होता था, 8 आने चवन्नी होती थी। हजरत ने 5 रुपए दिए, और 5 रुपए दे के जा तवाइफ के यहां रात वहां गुजार के आ। जब सुना तो एकदम लरस गए, एकदम लरस गए कि हजरत मुझे कहां भेज रहे हैं, गुनाह के लिए भेज रहे हैं, कहां भेज रहे हैं, दुर्वेश क्या कर रहे हैं। फिर ख्याल आया कलंदर चे गोया थक गोया, फकीर की बात को ना बस चुप, टूटे टूबे कदमों के साथ चलते चलते एक ऊंचे कोठे पे गए जो मशहूर था सबसे ज्यादा, उसे 5 रुपए दिए। उसने 5 रुपए देख के हैरान, 5 रुपए दिए। उसने कहा मेरा आ, तुम्हें वो सौदा देता हूं जिसपे किसी ने हाथ नहीं लगाया। आगे देखा तो बेटी थी, अब्बा कहीं बेटी ये क्या, रोए, क्या हुआ। कहा आप सफर में आए, पीछे डाकू आए और मुझे उठा के लाए और कहा इसको हाथ ना लगाना, पैसा ज्यादा मिलेगा।
अनटच माल है, हाथ ना लगाना, पैसा ज्यादा मिलेगा, आके इसके यहां आपको बेचा, इस पेशा करने वाले के यहां मुझे बेचा, और बाबा सबसे पहले ग्राहक आप हैं। इज्जत बच गई। उसको पैसे ले दे करके ले आए बेटी को और कहा मुर्शिद बस माफ कर दे, मैं आपकी बातों को अपनी अकल से तोलता रहा, मैं आपकी बातों को अपनी अकल से तोलता रहा। जहां हमारी अकलें खत्म हैं वहां इश्क की हदें शुरू होती हैं, जहां हमारी अकलें खत्म हैं वहां इश्क की हदें शुरू होती हैं, और इश्क लामहदूद है, इश्क लामहदूद है। दिल दरिया समंदरों दूंगे ते कौन दिला दिया जाने हो। कुछ और जहान भी है, कुछ और दुनिया भी है। हमारी अकल जहां ठहर जाती है, हमारी समझें खत्म हो जाती हैं, हमारे शऊर जहां महदूद हो जाते हैं, वहां फिर एक कायनात का निजाम अगला शुरू होता है। कितने लोग ऐसे हैं, खवातीन और मर्द पूरी दुनिया में। मैंने 13 रमजान को कहा, मुझे हजरत ने फरमाया था कि तारे के कितमीर क्या कर रहे हैं, जो लफ्ज थे वो बताओ, अजियत दे रहा है। बस फिर मैंने अपने लिए अमाल के फैसले कर लिए थे, क्योंकि हमारे पास जमीन से नीचे आसमान का निजाम है, जमीन के अंदर उलझना करना हमारे पास ये निजाम नहीं है। कितने लोगों को मैंने कहा और उन्होंने फैसला कर लिया है, डट गए हैं, ये अनदेखी दुनिया का निजाम है। कितने अभी सोच रहे हैं कि क्या करें या ना करें, वो सोचों में ही रह जाएंगे, महरूम रह जाएंगे। कितने हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि अपने कौन से अमल, अपने कौन से वजीफे, अपनी कौन सी चीजें पागल दीवाना हो के हमने शुरू कर दिए हैं। कितने ऐसे हैं जो अनदेखे निजाम के इशारों को समझते हैं, जो अनदेखे निजाम के इशारों को समझते हैं। कि कुछ कितमीर ऐसे हैं जो तस्बीह खाने को खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए वो डट गए हैं, वो लग गए हैं। उन्होंने, औरतें और मर्द, उन्होंने फैसले कर लिए हैं। कई ऐसे हैं जो अकल वाले हैं, जो सिर्फ सोचों में हैं। यहां अकल की दुनिया फेल हो जाती है, यहां अकल का निजाम फेल हो जाता है। जहां अकल खत्म होती है वहां इश्क की पहली मंजिल शुरू होती है, वहां इश्क का अगला निजाम शुरू होता है, वहां इश्क की दुनिया शुरू होती है। और वहां खुली आंखें फिर और होती हैं, नजर आए ना आए, नजर आए ना आए, फिर वहां इश्क वाले पागल और दीवाने हो जाते हैं, और वो फैसले अर्शों से करवा के छोड़ते हैं, और कितमीर और उसके सारे जाल को तोड़ के रखवा देते हैं। इश्क वाले फिर यूं होते हैं, और अकल वाले सोचते रह जाते हैं। इश्क वालों के लिए एक इशारा काफी होता है, बस उनको ना वजाहतों की जरूरत है, ना दलीलों की जरूरत है। या ये जरूरत है कि हजरत बताएं हम कौन सा अमल करें, तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद है, इश्क से पूछो, अपने इश्क से पूछो, अपने जज्बों से पूछो। कुछ दुनिया और भी है। ये जो सलाम फेरते हैं ना दाएं बाएं, इस सलाम के अंदर बड़े राज रखे हैं, इस सलाम के अंदर बड़ी दुनिया रखी है, इस सलाम के अंदर बड़ी कायनात छुपी हुई है। अगर अल्लाह मुझ पे आप पे खोल दे, बस मुझ पे आप पे खोल दे। हत्ता कि यहां तक इमाम आजम फरमाते थे अल्लाह मुझ पे ना खोल। कुछ खुला था तो अल्लाह से कहा अल्लाह वापस ले ले। हाँ खुला था ना तो अल्लाह से कहा अल्लाह वापस ले ले, मुझ पे इतनी नहीं है, मुझ पे ना खोल। पर है दुनिया कुछ और। इसलिए इश्क की दुनिया में ना, इश्क की दुनिया में, इश्क की दुनिया में कैसे चलना है, बस एक आखिरी बात बताऊं। उसने कहा हजरत इतना मकाम कैसे पा लिया। एक बुजुर्ग थे पीर इमाम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा हजरत ऐसा मकाम क्या पा लिया। अब पहले लफ्ज बताऊंगा फिर उसका तर्जमा करूंगा, जिसको समझ नहीं आएगा। कहा मुर्शिद कुन गिया ते भेद बनते रिया वाले साया शी बढ़ा देते। ओए होए होए, भेड़ बन के रहा, भेड़ का सर ऊपर या नीचे, भेड़ चाल क्यों कहते हैं। वहां सोच नहीं होती, वहां अकल नहीं होते, वहां इश्क होता है। बस चल पड़े। एक भेड़ ने कुएं में छलांग लाई, सारे कुएं में। इश्क करेंदा धुए, ना खड दे थे ना खूए। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना। मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। फरमाया मुर्शिद के सामने जाके भेड़ बन गया, फिर मुर्शिद ने शेर बना दिया, अल्लाह का शेर।
मुर्शिद ने शेर बना दिया, भेड़ बन के चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, समझ आए ना आए, अकल माने ना माने, शऊर इदराक साथ दे ना दे, भेड़ बन के चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फरमाया फिर मुर्शिद ने शेर बना दिया, और ऐसे ही थे शेर, और वाकई वो शेर थे। ये मौका मिला है, ये मौका मिला है इश्क की हदूद में जाने का, अकल से निकल के इश्क की हदूद में जाने का ये मौका मिला है। इस मौके से फायदा उठाएं। अकल की दुनिया कब तक चलेगी? सॉरी, साइंस की दुनिया अकल की नहीं है। मुझे दिखाओ ऑक्सीजन कहां है इस हाल में, अकल खत्म। मुझे दिखाओ आपके मोबाइल का नेटवर्क कहां है इस हाल में, कासिम हाल तस्बीह खाने में, खत्म। मुझे दिखाएं आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी है, वो निकालो, तारे हैं निकल रही हैं। कैल्शियम की कमी है, वो छूना कहां है, दिखाओ मुझे। जिस्म में रूह कहां है, ये रूह है तो जिस्म है, जब ये रूह खत्म तो जिस्म मुर्दा, मुझे वो रूह दिखाएं कहां है। साइंस का सारा निजाम तो अनदेखे माना। दर्द की बुखार की गोली उठा के कभी कोई कहता है इसमें है क्या, पहले मुझे बताओ, मुंह में डालता है कि अंग्रेज ने कहा इसमें शिफा है, मान लिया। जहां रूह की दुनिया में दलीलें मांगता है, लॉजिक मांगता है, रूह की दुनिया के लिए कहते हैं क्या पता होगा, वहां दलीलें किस चीज की? साइंस की दुनिया में कहता है ये फला का कानून, ये फला का कानून है, लिहाजा ठीक है, जो कहा ठीक है। साइंस की दुनिया में अपनी मर्जी करके ना, मुझे जीरो ना लगा और कोई मोबाइल का कोई किसी को कॉल करके दिखा, पहले जीरो ना लगा, कहते नहीं जीरो लगाना जरूरी है। वहां तो कहता है ये कानून है, और रूह की दुनिया में कहता है मैं अपनी मर्जी करूंगा। तेरी मर्जी कैसे चलेगी? तो रूह की दुनिया से महरूम रह जाएगा। उसके लिए अकल को छोड़ना होगा, इश्क को लेना होगा। साइंस की दुनिया में कोई पैकेज मिला और स्टार हैश के बगैर मिला के दिखा, मुझे दिखा। वो कहते हैं ये कानून है, असूल है। किसने कानून बनाया? किसी किताब में लिखा है, दिखा कहां है? कहते हैं तुम्हारी तावीजों से क्या होगा, ये QR कोड तावीज तो है, ऐसे मोबाइल को दिखाते, ऐसे दिखाते कायनात खुल जाती है। ये अंग्रेज के तावीज के अंदर तुझे इतना यकीन है, QR कोड। कुछ दुनिया अनदेखी है, कुछ निजाम अनदेखा है। खुशकिस्मत है जिनको मुर्शिद ने बरह रास्त को खिदमतें दी हैं। खुशकिस्मत है मैं आपको बरह रास्त इश्क की दुनिया, इश्क का निजाम। बस अकल की हदूद से निकल के इश्क की दुनिया में जाए। ये कायनात हद दर हद कहीं और भी है। जब निकलेंगे ना, फिर अल्लाह दिल के पर्दे हटाएगा। तो दाता साहब के सामने दिल के कायनात के पर्दे हटे थे, तो उन्होंने कहा मैं किताब का नाम क्या रखूं? कहा मैं किताब का नाम रखता हूं कश्फुल महजूब, कि पर्दे सारे हट गए। इसका माना है पर्दे सारे हट गए। हिजाब पर्दों को कहते हैं, महजूब पर्दों की जमा, पर्दे दर पर्दे दर पर्दे, सारे पर्दे हट गए मेरे सामने जब मैं अपने मुर्शिद में फना हुआ था, शेख अबुल फजल में। ये निजाम है, मैं भी समझ जाऊं, आप भी समझ जाएं, अल्लाह मुझे भी समझा दे। सारे बैठे अपने सबक सुना रहा हूं, सबक ही पूरा हो जाए, सबक ही पक्का हो जाए, अल्लाह करे। क्या ख्याल है? सबक ही पक्का हो जाए। हुरूफ तहज्जी का नक्श है। आज का नक्श हमारा तवा है, जिसे तोएं कहते हैं, तवा है। कुरान पाक में 1274 मरतबा आया है। बहुत ताकतवर हर्फ है। इसको तसव्वुर में लेके पढ़ते हुए नक्श को पुर करेंगे। अपनी मुरादें, अपनी हाजतें, अपनी आसें, अपनी उम्मीदें ये करेंगे। लिखना शुरू करें। माशाअल्लाह, तमंगरी कशकोल का अमल है, रोजाना करते हैं, तवज्जो से करते हैं, यकीन से करते हैं, ध्यान से करते हैं। 45 बार या कादिरो या नाफियो पढ़ते हैं। फिर इन गुठलियों को हाथ, वो गुठलियां हैं जिसमें लाखों करोड़ों दफा सूरत इखलास, दरूद पाक, कलमा, जिक्र, अस्कार, उनकी बरकत हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये वो गुठलियां हैं। और फिर बदन पे मलते हैं 45 दफा या कादिरो या नाफियो। फैसले बदल जाते हैं, रहमतें आ जाती हैं, मुश्किलें टल जाती हैं, नाकामियां दूर होती हैं। और जब एक मजमा मिल बैठ के पड़ता है, फिर रहमत के दरवाजे वसी से वसी खुल जाते हैं। आए तवज्जो ध्यान से पढ़ना शुरू करें। या कादिरो या नाफियो 45 बार।